Good morning to all of you. As we are doing exercise 8.9, right? In previous class you have studied how you will convert meter to centimeter, how you will put the decimal between the numbers, right? Now in this class we will study about question number 6, which is express the given number in the kilogram and gram. See, first question is 4.638 kilogram, right? See, 1 kilogram equals to how many gram? 1000. So after decimal, how many number of digits? 1, 2, 3. It means number क्या होगा हमारा? 4 kilogram and 638 gram. Write my point. B part 5.844 किलोग्राम. सी यहाँ पे हमें डेसिमल रिमूव करना है एंड जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं हम चेक करेंगे कि जो हमारी गिवन कंडीशन है दैट इज़ 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. नंबर ऑफ जीरो शुड बी 3. सो देयर आर नंबर ऑफ डिजिट्स वी नीड 3. सो नंबर इज 5 kilogram 844 gram, right? C part 32.56 kilogram. See, 1 kilogram equals to 1000 gram. How many digits? How many zeros? 3. and digits जो हमारे पास डेसिमल के बाद है वो कितनी है? 2, right? तो हम क्या करेंगे, हम आपका डेसिमल से पहले का नंबर तो सेम रहेगा, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, हम इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे. एंड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा कि आपको अगर डेसिमल रिमूव करके डिजिट्स को नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को इक्वल करना है तो आप बाद में 0 लगाएंगे, राइट? और अगर आपको डेसिमल लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे? डिजिट से पहले. डी पार्ट 22.97 किलोग्राम. अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स 2. 1 kilogram is equals to 1000 gram. So answer is 22 kilogram and 970 gram. What comes here? 970, right? Like this you have to do. Now next E part 823.9 kg means kilogram. 1 kilogram equals to 1000 gram. So 823 किलोग्राम. आफ्टर दैट यहाँ पे 9 है और हमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर 3, तो क्या हो जाएगा आपका 900 ग्राम, राइट? याद रखना, अगर आपको डेसिमल रिमूव करके यूनिट्स के साथ नंबर लिखना है तो लास्ट में ज़ीरोज़ आएंगी, और गिवन यूनिट्स में अगर हमें डेसिमल लगाना है तो हम इक्वल करने के लिए पहले ज़ीरोज़ लगाएंगे, राइट? Now F part 936.8 kilogram. 1 kilogram equals to 1000 gram. It is equals to 936 kilogram 800 gram. What comes? 800, because we have to put the zeros to make the number of digits equal to the digit after decimal, right? Now next 7 question, write each of the following in the decimal. What we have to do, we have to write the number in the decimal form. See, now we have to convert liter milliliter. So which is 7th question, each of the following in decimal. Each and
डेसिमल्स, राइट। ए पार्ट है जो, वो है आपका 6 लीटर 765 मिलीलीटर। सो एज वी नो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 milliliter. So this will 6 decimal 1 2 3 1 2 3 decimal 675 liter, right? Bigger unit we will use. B part 8 liter 786 milliliter, which will 1 liter is equals to 1000 milliliter, which is 8.786 liter, right? Now C part 26 liter 890 milliliter. Same, 1 liter equals to 1000 milliliter. So their number of digit 1 2 3. So आंसर क्या होगा आपका 26.890. After C, D part 76 liter 600 milliliter. So 1 liter equals to 1000 milliliter. 3 digit answer is 76.600 liter, right? Like this you will convert liter milliliter with the decimal number. Next one is E part 96 liter 24 milliliter, right? 1 liter equals to 1000 milliliter. So this will be 96.24 liter. Okay. After E, F part is 16 liter 9 milliliter. Sorry, यहाँ हमें 3 डिजिट्स थी एंड वी आर हैविंग जस्ट 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल 0 to 4 लीटर, राइट? क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करना है. सो अगर आपको डेसिमल में नंबर को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिजिट से पहले 0 लगाएंगे. सेम इन दिस क्वेश्चन 16 decimal 3 digits we require after decimal 009 liter, right? So like this you have to convert liter milliliter into decimal part, which is the unit of liter. Now 8th question, which is also express in liter and milliliter. Express in liter and milliliter. Now the numbers are given to you in the decimal. See, numbers में हमें डेसिमल को हमें रिमूव करना है. तो अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो हम कहाँ करेंगे, आफ्टर द डिजिट्स, राइट? एक्सप्रेस इन लीटर एंड मिलीलीटर. ए पार्ट 2.648 लीटर. सो हमें पता है डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स वी रिक्वायर 3. आंसर क्या होगा आपका 2 लीटर 648 मिलीलीटर. सी बेटा, जहाँ पर भी आपको 2 यूनिट्स गिवन है, फर्स्ट आप क्या फाइंड आउट करेंगी कि ग्रेटर यूनिट कौन सी है, राइट? बिगर यूनिट जो भी होगी आपकी, लीटर मिलीलीटर. सी अगर मीटर में गिवन होता तो हमारी मीटर और सेंटीमीटर में बिगर कौन सी होती, मीटर, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मिलीमीटर. तो वहाँ पे आपको चूज़ करना है कि जो स्मॉलर यूनिट है वो कितनी स्मॉल है, वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है. सी अब हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, राइट? तो हमें जो नंबर डेसिमल में गिवन है, हमें पता है कि डेसिमल के बाद जो होंगी नंबर ऑफ डिजिट्स वो 3 होंगी.
और वो पार्ट किसका होगा आपका, मिलीलीटर का, राइट. सो सेम लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट विच वन द बिगर इज इक्वल्स टू हाउ मच बिग. सी नाउ बी पार्ट 4.095 लीटर, राइट. सो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा आपका, 4 लीटर, यू कैन से 095 मिलीलीटर और 4 लीटर 95 मिलीलीटर, राइट. सी पार्ट 6.77 लीटर, सेम 6 लीटर 77. अब यहाँ हम डेसिमल रिमूव करें, इट मीन्स कहाँ आएगा, डिजिट्स के बाद 0 विच इज मिलीलीटर. क्लियर. नाउ डी पार्ट 32.79 लीटर. सो ये क्या हो जाएगा आपका, 32 लीटर 790 मिलीलीटर, राइट. आफ्टर डी ई पार्ट 34.9 लीटर. सो ये क्या हो जाएगा आपका, 34 लीटर एंड 900 मिलीलीटर. आप डिजिट से पहले 0 नहीं लगा सकते, अगर होता तो हमें ऑलरेडी गिवन होता. सो डेसिमल रिमूव करना है तो डिजिट्स के बाद, अगर आपको डेसिमल लगाना है तो डिजिट से पहले. वन मोर पार्ट विच इज F1 179.4 लीटर्स. ये किसके इक्वल होगा आपका, 179 लीटर एंड 400 मिली लीटर, राइट. So this is question number 8. Now question number 9 is express the following amount of money in decimal. Express the following amount of money in decimal. Now we have to express the money in decimal. So rupees and पैसे. See rupees और पैसे में आपकी bigger unit क्या है, rupees and smaller पैसे. So as we all know 1 rupee equals to 100 पैसे. Money in decimal. Right. So first part 21 rupee 45 पैसे, right. We all know 1 rupee equals to 100 paise. So after decimal how many digits we require? 2. So ये क्या हो जाएगा आपका 21.45 रुपी. सी ये आपने थर्ड क्लास में भी किया था, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना एंड रुपीज़ इनटू डेसिमल. बी पार्ट 65 rupees 76 पैसे, right. So same 1 rupee equals to 100 पैसे. So ये क्या हो जाएगा आपका 65.76 rupees, right. क्योंकि हमें जो आफ्टर द डेसिमल डिजिट्स रिक्वायर है दैट आर 2, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी है 2, राइट. नाउ सी पार्ट is 340 rupee 35 पैसे. अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं. 1 rupee इक्वल्स टू 100 पैसे. सो हमारा क्वेश्चंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 340.35 रुपीज़. क्या आएगा यहाँ पे रुपीज़. डी पार्ट 715 रुपीज़ 90 पैसे. तो 1 rupee इक्वल्स टू
100 पैसे। सो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 715.90 रुपी। आपको सिर्फ चेक करना है बेटा कि जो स्मॉलर यूनिट है रुपीज़ और पैसे में पैसे, उसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अगर हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की इक्वल है, सी पैसे में 2 ज़ीरोज़ एंड डिजिट्स जो हैं वो आपकी 2 हैं, तो आप एज इट इज़ लास्ट से 2 डिजिट काउंट कीजिए एंड पुट द डेसिमल। अगर कम है तो हम यहाँ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, ज़्यादा तो हो नहीं सकते। अगर ज़्यादा होंगे तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो वो लेस देन ही होंगे। सो हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना है, आइदर एडिंग द ज़ीरोज़ और ऑलरेडी गिवन द नंबर्स। नाउ ई पार्ट, is 526 rupees and 66 पैसे, राइट। सो अगेन सी यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, एज वी नो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट। सो अब हमें जो डेसिमल लगाना है वो 2 डिजिट से पहले लगेगा। 526.66 रुपीज़, क्लियर। आफ्टर ई एफ पार्ट 823 रुपीज़ 94 पैसे। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। This will become 823.94 rupees. Clear this point? See beta, in this question also it is same, like you have to convert them. आपको डेसिमल लगाया है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑलवेज इक्वल, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑलवेज इक्वल। अगर यहाँ पे 6 पैसे होते तो हाउ यू विल राइट 06 पैसे, क्योंकि अगर आप 6 के बाद 0 लगाते तो वो 60 हो जाता, और अगर डेसिमल 06 लिखते देन विल बी इक्वल्स टू 6 पैसे, राइट। तो इसलिए हम जब भी किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम बिफोर द डिजिट 0 लगाते हैं, डिजिट से पहले 0। अगर आप इसको डिजिट के बाद 0 लगाते हैं तो ये 60 बन जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। If you write 06 then it is equal to 6, but this one is not equals to 6. Clear my point? Why I am saying again and again कि आप अगर डेसिमल में नंबर कन्वर्ट करेंगे तो डिजिट से पहले 0 आएगा, और अगर डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो डिजिट के बाद 0 आएगा, टू मेक देम इक्वल टू द गिवन कंडीशन, कि आपको उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट। Now same like that, question number 10, express the following in rupees and paise. Now the question is given to you, that is in the decimal form of rupees and paise. Question number 10, in rupees and paise, right. A part is, now A part rupees 2.44. Now see, after decimal how many digits we require? We require only 2 digits, so there are 2. 1 rupee equals to 100 पैसे। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 2 रुपीज़ 44 पैसे, राइट। बी पार्ट रुपीज़ 34.76। सेम, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स वी रिक्वायर? 2,
So this become 34 rupees 76 paise. Right? C part, rupees 45.66 again beta rupees 200, so rupees to paise, 1 rupee equals to 100 पैसे. सो क्या हो जाएगा आपका 45 रुपीज़ 65 पैसे. क्लियर? सी इट इज़ वेरी इजी टू write in rupees पैसे, write in liter and milliliter. You have to just remove the decimal. आपको सिर्फ डेसिमल को रिमूव करना है एंड चेक करना है कि जो गिवन कंडीशन है कि आफ्टर डेसिमल 2 zeros दैट इज सेटिस्फाइड और नॉट. 1 rupees इक्वल्स टू 100 पैसे. सो देखो यहाँ पे 2 zeros हैं, तो हाउ मेनी डिजिट्स वी रिक्वायर 2 एंड वी आर हैविंग दैट 538 rupees and 80 पैसे. राइट? You have to just check the number satisfied the condition or not. Like in E and F part, rupees 627.99. अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और हमें रुपीज़ में कितने ज़ीरोज़ होती है हमारे पैसे में 2. तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका 627 रुपीज़ 99 पैसे. राइट? एफ पार्ट 7230.75 rupees. So again after decimal number of digits 2. So same 7230 rupees 75 paise. So these are the uses of decimal. क्या है आपके uses of decimal. This is the way to do the exercise. See now in this exercise from the first question we have to put the decimal also and we are removing the decimal also. हमने decimal को लगाया भी है और remove भी किया है. राइट? जस्ट आप जब कभी भी डेसिमल पुट करें, सी आपको कैसे पता चलेगा आपको ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, क्या करना है. हमें क्या करना होता है, हमें मीटर सेंटीमीटर गिवन है, मीटर गिवन है, हमें उसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड दिस वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर. राइट? तो हम क्या चेक करेंगे कि देखो इस क्वेश्चंस में तो हम ये चेक करेंगे कि जो सेंटीमीटर का पार्ट है, दोनों ही कंडीशन में हम स्मॉलेस्ट नंबर चेक करेंगे. सी यहाँ पे सेंटीमीटर का पार्ट है तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो हमारे पास जो होनी चाहिए वो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं और यूनिट यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर. अगर आपके पास सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स नहीं हैं तो हम 1 0 ऐड कर सकते हैं वहाँ, बट वो 0 डिजिट से पहले ऐड होगी, वो डिजिट से पहले ऐड होगी. सेम अगर आपको कोई नंबर डेसिमल में गिवन है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो वो जो आपका डेसिमल के बाद का पार्ट होता है वो होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए, और डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है आपका बिगर यूनिट का, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्मॉलर यूनिट का. आइदर दैट इज़ मीटर, सेंटीमीटर, लीटर,
मिलीलीटर, रुपीज़ पैसे, राइट, किलोग्राम, ग्राम, in every question centimeter and millimeter, in every part डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में पोर्शन है, जो नंबर है, वो होता है आपका बिगर यूनिट्स का, और जो राइट साइड में होता है दैट इज़ फॉर स्मॉलर यूनिट, फॉर मिलीलीटर, पैसे, ग्राम, मिलीमीटर, राइट। सो जब कभी भी आपको नंबर्स को ऐसे कन्वर्ट करना हो, so you will remember about the decimal parts and about these points कि लेफ़्ट में जो होगा वो आपका ग्रेटर नंबर आएगा, अगर आपको डेसिमल लगाना है तब भी और रिमूव करना है तब भी, राइट। सो दिस इज़ अबाउट एक्सरसाइज 8.9 which is completed in today's class.